just one. You can mark your attendance in the chat box. Okay. Okay. But in ma'am, last 2 days I have not marked. I attended first class. After that, second day, and my grandfather got expired. That's why I have not attended that one. No And today problem. There is no problem at all. You can do one thing. You can mark it now. Okay. So I think there will be no problem. So shall we start now? yes, ma'am. Please. Okay. I hope you are able to see my screen. Yes, ma'am. Okay. We have done block 1 and block 2 in the previous classes. And today we'll do block 3. I hope my screen is clear to you. Is it visible to Yes, you? ma'am. Okay. So today we'll do Begla and 135 English in daily life. Dear students, in previous classes we have done body language, transcription, pronunciation, and then some part of the grammar. Today we'll do media and entertainment, and let us see what is there in block 3. Okay. Block 3, media and entertainment. Unit 1 consists the media, Unit 2 the floating market of Thailand, and Unit 3 people at work, and Unit 4 smell of food. It's a very interesting unit, बहुत interesting unit है ये आपकी, and you will come to know about various parts of the world like floating market of Thailand if you have heard about this. So you will definitely enjoy this class. Okay. So let us start the media. What is the objective of this class? The objective is that in these modern and high-tech times, the term media covers both print and electronic, which acts as means of mass communication. The media, we are most familiar with our newspapers, magazines, radio, TV, and now the mobile phones and the internet. So actually, we are living in the age of media, and the first two sections are examples of diversity of news items which will increase your knowledge as well as your vocabulary. So usually we do these warm-up exercises. These are the questions you can ask yourself. Is it national, international, or local edition newspaper is there? What is the language of the paper and why? How many pages does it have? What are the main news items? If you read newspapers, you can easily guess, but if you don't, you cannot guess. Okay, let us do the reading portion. A news article. Now read this interesting news article and work on the exercises that follows. In the news, 19th January 2006. Okay, so this article was published in the news dated 19th January 2006. NASA scientists hope the third time is the lucky charm for their 700 million unnamed missions to Pluto. The space agency planned to make a third attempt to launch the New Horizons probe on Thursday, a day after a storm knocked out power at the Maryland-based laboratory that will command the mission. Okay, so we are reading an article which consists the information related to NASA. ठीक है, जो NASA के scientists हैं वो third time they are trying to reach to the planet Pluto, and usually NASA जो है वो they work on planets, they work on cosmo sciences. So they are basically doing a project, and they are trying to launch something to the planet Pluto. Strong winds in Laurel, Maryland knocked out power at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, and mission managers were wary of launching the spacecraft without backup power at the facility. So basically यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो नॉकड आउट पावर मींस पावर कट हो गया है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में, and that's why they are they may have to change the
launch of their spacecraft. The air conditioning was off. The flight controllers were sitting there wiping sweat, said Alan Stern, the mission's principal investigator. और एलान स्टर्न जो है वो इस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और ही इज डिस्क्राइबिंग कि जो एयर कंडीशनिंग थी वो ऑफ कर दी गई और जो फ्लाइट कंट्रोलर्स थे क्योंकि एयर कंडीशनिंग नहीं थी, सो दैट्स व्हाई they were facing sweat. High winds at the launch pad also kept the spacecraft from lifting off on Tuesday. और क्योंकि हाई विंड्स थी और बहुत ज्यादा अगर हाई विंड्स होगी तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट, और वहां पे ऐसा ही हुआ और ट्यूसडे को इसलिए स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग नहीं हो पाई. विंड्स इन द ऑरलैंडो एरिया वर एक्सपेक्टेड टू बी 16 किलोमीटर पर आवर to 24 kilometer per hour. Scientists have been working 17 years on the 9-year voyage to Pluto and they were unfazed by the back-to-back postponements. और जो scientists हैं, they are really working very hard and that too since 17 years. और ये 9-year voyage means journey. 9 year की voyage है प्लूटो के लिए और always there is some delay or other delay in their project. 2 or 3 days doesn't mean a hill of beans, Stern said. The space agency has until mid-February to send the spacecraft on its way, but a launch in January would allow the spacecraft to use Jupiter's gravity to shave 5 years off the 5 billion kilometer trip. So they do this thing whenever they launch a spacecraft, तो वो एक दूसरे planet की energy ले लेते हैं and here same thing they are talking that they'll take the energy of Jupiter. The spacecraft is about the size and shape of a concert piano attached to a satellite dish. It will, अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी है या कोई भी स्पेस से रिलेटेड मूवी देखी है तो यू विल बी एबल टू इजीली जज दैट व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब अलग अलग उसकी शेप होती है सैटेलाइट डिश की. It will study Pluto as well as frozen sunless reaches of the solar system known as the Kuiper belt. और जो ये इनका स्पेसक्राफ्ट है ये प्लूटो को और उसके अलावा जो फ्रोजन सनलेस रीचेस हैं सोलर सिस्टम की उनको स्टडी करेंगे. साइंटिस्ट बिलीव दैट स्टडीइंग द रीजन्स icy rocky objects can shed light on how the planets form. और वो साइंटिस्ट ये ऐसा मानते हैं कि ये जो स्टडी है ये हेल्प करेगी ये जानने में कि प्लैनेट्स कैसे बने. The planned launch has drawn attention from opponents of nuclear power because the spacecraft is powered by 10.8 kilogram of plutonium, whose natural radioactive decay will generate electricity for the probe's instrument. NASA and the Department of Energy estimated the probability of a launch accident that could release plutonium at 1 in 350. As a precaution, the agencies brought in 16 mobile field teams that can detect radiation, plus air samplers and monitors. So let us do the question answers now. Sorry, let us do the question answers now. What led to a power failure at the laboratory? क्या हुआ था, क्यों पावर फेलियर हो गया था लेबोरेटरी में, लैब में? विंडस्टॉर्म की वजह से. Yeah, very good. Next is, for how many years have scientists been working on this project? कितने? 9 years. 17 years or 9 years? 1 minute. Nine years. Okay. What would be the advantage of a launch in January? अगर वो जनवरी में लॉन्च करते तो उसका क्या एडवांटेज होता? We have why would they wanted to launch it in the January?
It would allow spacecraft to use Jupiter's gravity to share 5 years of Yes, 5 billion it would kilometers. allow the spacecraft to use Jupiter's gravity to shape 5 years of the 5 billion kilometer trip. उनको जुपिटर की एनर्जी मिल जाती, ठीक है. What is spacecraft powered by? Powered by 10.8 kg of plutonium. Plutonium. Okay, very good. So, right, true or false? The spacecraft could not take off due to high winds. Is it true? True. The voyage to Pluto would take 19 years. False. The spacecraft will not be able to take off after January. No. False. फॉल्स, इट कैन टेक ऑफ, लेकिन बस जनवरी की एक एडवांटेज हो जाती है कि जुपिटर की ग्रेविटी पावर उनको मिल जाती. द क्यूपर बेल्ट इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. False. False. Okay, look at this paragraph. It has 3 pieces of information and you have to frame 3 questions which can be answered by the information given above. So it will help you how to make a question from a paragraph. You know what? Whenever you study something, whenever you read something, you should try to ask the question in between. जब भी आप कुछ पढ़ते हो, read करते हो, तो क्वेश्चंस लिख लो एंड आप उसके आंसर्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन दैट पैराग्राफ ओनली. इट विल हेल्प यू टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स. इट विल हेल्प यू टू लर्न द थिंग्स फास्ट. What is Kuiper belt? Yes, you can. The spacecraft is about the size and shape of a concert piano attached to a satellite dish. So first question can be, tell us what is the size and shape of the spacecraft. Okay, next is it will study Pluto as well as the frozen sunless reaches of the solar system known as Kuiper belt. So what will the spacecraft study? Okay. Yes. Next is scientists believes that studying the region's icy rocks objects can shed light on how the planets form. So what can be the question here? Why this study is important, or why the study of Pluto is important? So I hope this is clear to you. So let us move forward. 1.3 vocabulary assessing sites. The computer has become a common means of communication and source of news today. Yes, it is very right. कंप्यूटर जो है आज की डेट में कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. न्यूज भी हम इनफैक्ट वी डोंट लव टू रीड न्यूज़पेपर्स और वॉच टेलीविजन. We love to watch news on YouTube channel if we have subscribed some, or we usually read it from Google, or e-paper we prefer. There are many sites which give us news and information. बहुत सारी sites हैं जो हमें news देती हैं, information देती हैं. And there are search engines like Google and Yahoo which respond to our queries and guide us to relevant sites. One interesting way to increase your vocabulary is to look for information on a subject of your interest. सबसे इंटरेस्टिंग वे क्या है, अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने ही सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स दैट यू मे नॉट नो, और फिर मीनिंग ढूंढिए वर्ड्स के जो आपको नहीं पता है. Here is a page from Google which gives you information on social networking site. ठीक है, ये एक हाइपर लिंक है. अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो you will reach to the site where you can get the information. ठीक है. Now what is social networking? Social networking is also referred as social media. Encompasses many internet-based tools that make it easier for people to listen, interact, engage and collaborate with each other. ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से मिल सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. It is quite easy, right? Social networking platforms such as Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, blogs, message boards, Wikipedia and countless others are catching on like wildfire. ठीक है, बहुत सारे, there are so many number of social platforms are there now where we can interact with our friends. In fact, Facebook पे तो आपको
इतने पुराने भी फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपको याद भी नहीं होते, आप जिन्हें याद होते हैं, और दे सेंड यू अ फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, और यू कैन मीट देम थ्रू कॉमन फ्रेंड्स. ओके, सेम इज विद इंस्टाग्राम, यूट्यूब. लोग जो हैं दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन नाउ अ डेज. क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे वो अपने इंटरेस्ट की चीज देखते हैं और टेलीविजन में जो उनको दिखाया जाता है वो देखते हैं. तो दैट्स व्हाई people have shifted from in fact television to YouTube to some extent. LinkedIn पे आप you can find jobs of your interest, you can meet the people of your field, and through Twitter you can reach to the world. Many people are many celebrities, they are using Twitter, and in fact many politicians also they are using Twitter, and they have their own followers, and it will help them to reach to the people easily. Then blogs, through blogs you can write whatever you like. You can write your travel diaries, you can write anything of your interest, and you can reach to the world. Same is with message boards, and through Wikipedia you can get the knowledge, and you can in fact add knowledge over there also. So it is like now in fact we cannot imagine our lives without them. People use social networking to share photos. लोग जो हैं आजकल फोटोज को, आइडियाज को, रेसिपीज को, और टू कीप फ्रेंड्स अपडेटेड ऑन आवर लाइफ, अपनी अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताते हैं. You can use social networking tools from mobile devices such as smartphones. आप स्मार्टफोन्स के थ्रू भी इनफैक्ट हम स्मार्टफोन के थ्रू ही इन नेटवर्किंग साइट्स को फॉलो करते हैं as easily as from a PC or laptop. PC laptop आपको खोलना पड़ेगा, but through smartphone you can do it easily. By its very nature, the social networking is interactive. You can tell anyone that you want to talk to and that wants to listen to you. आप किसी को भी बता सकते हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं या उन्हें सुनना चाहते हैं. Anything about your opinions and experiences, and vice versa, through blogs, Facebook pages, videos, and even 140 character messages called tweets. So through tweets, through your Facebook pages, through your videos, you can reach to the people, and you can be very famous too. You can also build communities based on common interests, causes, and concerns. There are number of Facebook pages जो कि common interest को लेके बने होते हैं, common communities के लिए, common causes के लिए बनाए जाते हैं. While we don't have room to discuss all of the social networking sites, here is a sample to help you get your head around today's most popular social networking sites. ठीक है, हम सभी को तो we cannot discuss over here, लेकिन let us do some of them. Blogs are sites that people set up to provide information and opinions about events, ideas, or anything else they want to discuss. Blogs can include links to other related sites, photos, videos, and sounds, as well as text. The number of bloggers is growing exponentially. So basically blogs में हम अपनी information को, अपने opinions को, events को, ideas को we discuss, we write. Twitter is a micro blogging site. Micro blogging होता है जिसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसमें कुछ लिख सकते हैं. 140 characters ही होते हैं I think उसमें. और it is a free micro blogging service that allows registered members to broadcast short posts called tweets. छोटी छोटी post tweets आप लिख सकते हैं, either using a computer or a cell phone. आप अपने सेल फोन से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं. Other Twitter's users can follow your post, but you can decide if you want to let them follow or not. आप अपने followers को हटा भी सकते हैं. Suppose आपको कोई person अच्छा नहीं लगता है, वो आपके tweets पे negative comment करता है, तो you can unfollow them or you can remove them from your page. Next is Facebook. Facebook is a popular free social networking website that allows registered users to create profiles, upload photos and videos, send messages, and keep in touch with friends, family, and colleagues. Facebook is quite popular. I hope you all are familiar with the Facebook. आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका Facebook पे अकाउंट नहीं है.
and the main thing is that people use people upload their photos, videos and messages, and they keep in touch with friends, family and colleagues जिनसे कभी सालों से भी नहीं मिले हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट पे आप जरूर कमेंट कर देते हैं एंड यू फील लाइक कि आप उनके पास ही। LinkedIn जो है is a business and employment oriented social network service that operate via websites and mobile apps. It is mainly used for professional networking. LinkedIn जो है वो एक बहुत अच्छी साइट है। अगर आप अपना प्रोफाइल LinkedIn पे बनाते हैं तो even people can hire you according to your skills, ठीक है। तो आप अगर Facebook पे नहीं भी बनाते अपना अकाउंट, लेकिन LinkedIn पे आपका जरूर होना चाहिए। It including employers posting jobs and job seekers posting their CVs. जिनको employers चाहिए वो jobs वहां पे advertise करते हैं, और जिनको job चाहिए they upload their CVs over there. Next is Telegram. Telegram is a non-profit cloud-based instant message service. टेलीग्राम वैसे बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से जब से ये लॉकडाउन लगा है, और क्योंकि व्हाट्सएप जो है उसमें 250 पीपल ही आ सकते हैं एक ग्रुप में, तो नाउ इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। और आज की डेट में देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ऑन टेलीग्राम आल्सो। User can send messages and exchange photos, videos, stickers, audio and file of any type. Users can have a secret chat over there which can be deleted from the receiver's phone to within a period set, ठीक है। तो टेलीग्राम की सबसे अच्छी बात ये क्या है, अगर हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम को कंपेयर करते हैं तो व्हाट्सएप पे आपका फोन नंबर जाता है, ठीक है, फोन नंबर आपको पहुंच जाता है, जो भी जिस भी आप ग्रुप में होंगे फोन नंबर डिस्प्ले होता है। टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। प्लस आप सीक्रेट चैट कर सकते हैं, और चैट करने के बाद आंसर मिलने के बाद भी विद इन अ पीरियड सेट, मतलब कुछ पीरियड के बीच में आप उस चैट को डिलीट भी कर सकते हैं, विच इज नॉट द ऑप्शन फॉर व्हाट्सएप। अगर आप मतलब अब तो कर सकते हैं बट नॉट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी यूज्ड इन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को बहुत सेफ माना जाता है एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। Wikipedia is a free open content online encyclopedia created through the collaborative effort of community of users known as Wikipedians। हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं और जो फर्स्ट पेज आता है यूजुअली किसी भी इंफॉर्मेशन का वो विकीपीडिया आता है, ठीक है। तो हम अपने कंटेंट को वहां पे सर्च कर सकते हैं। anyone registered on the site can create an article for publication। अगर आप रजिस्टर्ड हैं साइट पे तो आप अपना आर्टिकल भी वहां डाल सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और लेकिन रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एडिट आर्टिकल्स। अगर सिर्फ आपको कोई एडिट करना है आर्टिकल तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सर्च करना है, रीड करना है तो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ अगर आपको पब्लिश करना है ओनली देन द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। So let us do the vocabulary exercise and match the following idioms with their meanings. There are two extra meanings, ठीक है, दो extra meaning है और उनको we have to omit those. Catch like wildfire. Any one of you want to answer? ओके, टू सर्कुलेट और डिसेमिनेट वेरी क्विकली, जो बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है। कैच लाइक वाइल्ड फायर, क्योंकि आग जो है ना वो बहुत जल्दी फैलती है। दैट्स व्हाई द मीनिंग इज टू सर्कुलेट और डिसेमिनेट वेरी क्विकली। नेक्स्ट इज हैविंग ग्रीन फिंगर्स। हैविंग ग्रीन फिंगर्स, ठीक है, दैट इज गुड एट गार्डनिंग, जब आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कॉट रेड हैंडेड, जब आप पकड़े जाते हैं। To apprehend someone when they are doing something wrong. Back to square one. Back to square one means back to where one started with no progress shown। जब आपने जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच जाते हैं और आपको आपका जो एफर्ट्स हैं वो भी जो है फेल हो जाते हैं। देन यू कम बैक टू स्क्वायर वन। एट द 11th hour means at the
लेटेस्ट पॉसिबल टाइम मीन बिल्कुल एंड एट द, देखो 12 आवर्स होते हैं ना एक दिन में, तो एट द 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल जब आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना कोई काम करते हैं. सो यूज दीज idioms इन योर sentences, in sentences of your own. It will help you to increase your vocabulary. So let us do it. Our definition is a statement of the meaning of a term, a word, phrase, or other set of symbols. Definitions can be classified into two large categories. Intentional definition, which try to give the essence of a term. Okay. जब आप किसी टर्म की असेंस देते हैं, एंड द एक्सटेंशनल डेफिनेशन विच प्रोसीडेड बाय लिस्टिंग द ऑब्जेक्ट दैट अ टर्म डिस्क्राइब्स. जो लिस्टिंग सिर्फ एक होती है किसी ऑब्जेक्ट्स की. Notice the definition given of blog, Twitter, Facebook, and so on. Look up the internet for the definition of the following terms. ये वाली जो definition Instagram, WhatsApp, Hike, Messenger, YouTube, and Skype. We have not done this. आप ये जो है सारी डेफिनेशन या तो आप गूगल पे कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो यू नो व्हाट इज इन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हाइक, मैसेंजर, यूट्यूब एंड स्काइप. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. Listening World Wildlife Fund, you may have heard of the term endangered species. सुना है आपने endangered species क्या होता है? Have you heard about the term endangered species? Ma'am, like polar bear, which are going to be in danger. हाँ, the species which are in danger or they are near to extinction, ठीक है, often due to activities of human beings, especially human beings की activities की वजह से जो ये species हैं ये खत्म हो जाती हैं, क्योंकि environmental changes आ गए हैं, and some of the species they are not able to adjust they are not able to adjust in the environment which we are providing them. So after listening to the excerpt, what do you understand by the work of the WWF? देखिए, we do not have listening over here. हमारे पास वो CD नहीं है, so we cannot listen, and that's why we cannot answer these questions. Okay, so listening होगी तभी वो possible हो पाएगा. So let us do the next one now. Speaking, that is indicating your preferences. There are countless TV channels today, some of which are given below. Study them carefully. काफी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि डिस्कवरी चैनल है. डिस्कवरी चैनल इंडिया क्रिएट्स वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्रीज ऑन फूड, साइंस, सर्वाइवल एंड मोर. बड़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, स्पेशली फूड पे, साइंस पे, सर्वाइवल पे. और जो इन्होंने केदारनाथ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, जो केदारनाथ में नेचुरल कैलेमिटी आई थी, एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एवर मेड. नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है, इट इंस्पायरिंग पीपल टू केयर अबाउट द प्लैनेट, अ चैनल फॉर साइंस एक्सप्लोरेशन and adventure. Then H, the history channel, where the past comes alive, feature full episodes of history series and thousands of historical articles and videos. Then there is Fashion TV, is an international fashion and lifestyle broadcasting television channel. NDTV, it provides us with the latest news from India and the world. Then BBC News is a 24 hours news and information channel. Animal Planet, all animals, videos of wild animals on an encyclopedic level, from the plight of endangered species to the hope of adorable baby animals. तो Animal Planet पे वीडियोग्राफी दिखाई जाती है वाइल्ड एनिमल्स की. बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं. स्टार स्पोर्ट्स पे यू कैन वॉच द स्पोर्ट्स channel, and you can watch the sports of your interest. Then there is HBO, which provide viewers with access to award winning blockbuster movies. ठीक है, इस HBO पे सिर्फ वही मूवीज आती हैं जो कि अवार्ड विनिंग होती हैं, ब्लॉकबस्टर्स होती हैं. Then we have Sony Hindi TV, channel of popular reality TV shows and soaps. Then we have B4U Music, then 2X, CN Cartoon Network, and ABP News. So these are some of the channels. Okay, look at the channels listed above. Do you watch any of these? If so, which one and why?
अगर आप इनमें से कोई भी चैनल देखते हैं या कोई आपका फेवरेट चैनल है तो यू हैव टू लिस्ट दैट चैनल और आपको बताना है कि आपको क्यों देखते हैं. डू नॉट मेक अ वे कमेंट लाइक इट इज इंटरेस्टिंग और इट इज नाइस. You need to give a convincing reason which will encourage your audience to view it. If you do not watch any of the above, which ones do you watch? मतलब आपको ना एक जैसे आपको चैनल के बारे में बताना है, लेकिन ऐसे ऐसे सेंटेंसेस नहीं यूज करने. इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज नाइस. ठीक है, आपको रीजन बताना है. जैसे हिस्ट्री चैनल है तो आप कैसे बता सकते हैं, द हिस्ट्री चैनल इज इंटरेस्टिंग बिकॉज it has a variety of programs ranging from biography to solving crime, lifestyles to major events. ठीक है. डिस्कवरी चैनल अगर पसंद है तो आप बता सकते हैं, आई लाइक द डिस्कवरी चैनल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स covering facts on nature, places and people. National Geographical Channel अगर आपको पसंद है तो you can say the National Geographical Channel has beautiful photography of the natural world. फैशन टीवी अगर पसंद है तो आई एंजॉय फैशन टीवी एज इट टेल्स मी अबाउट द करंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेस एंड एसेसरीज अराउंड द वर्ल्ड. चैनल वी अगर आपको पसंद है तो इट ब्रिंग्स द लेटेस्ट पॉप hits from around the world. The star of the month features one artist and her songs are played regularly through the month. अगर आपको BBC पसंद है तो आप बोल सकते हैं BBC is a good news channel and I like following current affairs. ठीक है, तो जब भी आपको अपने चैनल के बारे में बताना है that why it is your favorite, तो आपको उसका रीजन बताना है. बिकॉज से बता सकते हैं आप. ठीक है, जैसे हिस्ट्री चैनल क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं रेंजिंग फ्रॉम बायोग्राफी टू सॉल्विंग क्राइम. ठीक है, डिस्कवरी चैनल क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें नेचर के, प्लेसेस के, पीपल के, लोगों के फैक्ट्स हैं. ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिकल क्यों पसंद है, क्योंकि ब्यूटीफुल फोटोग्राफी है नेचुरल वर्ल्ड की. ठीक है, इन फैशन टीवी क्यों पसंद है, क्योंकि करंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेसेस आपको अच्छी लगती हैं. चैनल वी आपको क्यों पसंद है, क्योंकि इससे आपको आपके फेवरेट सॉन्ग सुनने को मिलते हैं. बीबीसी क्यों पसंद है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं. तो हॉलमार्क, एचबीओ, स्टार मूवीज, चूज वन. शो फेमस मूवीज, क्लासिकल, न्यू मूवीज. मतलब आप इनमें से कोई भी, जैसे एचबीओ इज माय फेवरेट चैनल बिकॉज इट शोज द लेटेस्ट मूवीज विच हैज वन एक्लॉड इन देयर ओन फील्ड्स. ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी अपने चैनल को उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ स्पीकिंग एक्सरसाइज. The more you practice these sentences, the more you will be able to express yourself. Okay. Next is 1.6, writing a brief report. Here are couple of headlines from the newspaper. आप कुछ न्यूज़पेपर में आपने headlines पढ़ी, जैसे 2 injured as truck collides with van. Bird flu strikes thousands of chicken culled. Choose one of the headline and pretend that you are the reporter reporting first hand from the scene. Before you start, make a list of points that will interest the reader. This should include the scene, setting, characters involved, what actually happened, why, consequences, importance, and you could use an imaginary setting, etc. Okay. देखिए, जब भी आपको कोई भी रिपोर्ट लिखनी होती है तो रिपोर्ट का क्या मतलब है, दैट इट हैज बीन ऑलरेडी डन, वो ऑलरेडी हो चुका है एंड यू आर रिपोर्टिंग इट. ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, आप उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट शुड ऑलवेज बी इन द पास्ट टेंस. ठीक है, आपकी कभी भी ग्रामर में गलती नहीं होगी अगर आप कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट में देते हैं. और अगर आप पास्ट का भी, अगर आप पास्ट पैसिव यूज करते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फ्रेम योर सेंटेंसेस विदाउट एनी एरर्स. ठीक है, जैसे हेडलाइन क्या है, here is a sample of how you can write a report. और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी that you
Okay, I would like to tell you that you just see the words. It will help you to understand कि हमें reports कैसे लिखनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडलाइन है प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड, ठीक है, प्रोटेस्टर्स जो है वो अरेस्ट हो गए, आर्मी कॉल्ड आउट, ठीक है, आर्मी को बुलाया गया. रिपोर्ट क्या है, एज आई वॉक्ड, देखिए वॉक्ड जो है वो पास्ट में है, पास्ट टेंस यूज किया हुआ है. वॉक डाउन टू द टाउन हॉल आई कुड, कैन का भी पास्ट फॉर्म यूज की हुई है कुड, ठीक है. आई कुड हियर साउंड्स ऑफ शाउटिंग, गन फायर, सायरेंस एंड पुलिस व्हीकल्स. देयर वॉज, ठीक है, अब देखो अगेन वॉज यूज किया हुआ है, अगेन इट इज अ पास्ट टेंस. देयर वाज अ मैसिव क्राउड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लोकल लीडर एंड डिमांडिंग हिज रिलीज. प्रोटेस्टर्स बिगैन, अगेन जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की हुई है. began to throw stones at the police who prevented, again second form of the verb, them from proceeding towards the hall where the mayor was giving a speech. Soon the scene turned ugly as the police burst tear gas shells and finally resorted, again second form of the verb used here, to opening fire. There were past tense यूज किया हुआ है. There were shouts of anguish and rage and soon injured people, injured भी जो है वो past में यूज किया जाता है, second form of the verb है. were being taken away, ठीक है, were being taken away it means कि past passive form यूज की हुई है. There was utter chaos with the arrival of ambulances and more police jeeps. I could hear, ठीक है, कैन का भी पास्ट यूज किया हुआ है, कुड यूज किया हुआ है. I could hear the frustration and panic in the voices of the organizers of the meeting being held at the hall. They came out, came जो है again इसका past tense यूज किया हुआ है, came out to talk to the senior police officer on the spot. Next I heard का भी past form यूज किया हुआ है, him calling on his cell phone to the police commissioner asking for military forces, the situation looked grim, ठीक है. तो if you go through the report you will find, और कभी भी आप कोई भी न्यूज़पेपर ना इंग्लिश का स्पेशल, वो सारा का सारा जो है वो पास्ट पैसिव में पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है. तो जब भी आपकी बिल्कुल कोई भी एरर नहीं होगी अगर आप पास्ट टेंस यूज करें, क्योंकि रिपोर्ट मीन्स वी ऑलरेडी बीन डन, जो पहले ही हो चुका है, यू आर रिपोर्टिंग दैट, आप उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है. द इवेंट अभी हुआ नहीं, इवेंट जो है वो ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है. तो दैट्स व्हाई you can do you can write your report in the past passive. आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी. Okay, let us do now the grammar, the present perfect and the present perfect continuous tense, ठीक है. देखिए the rule for present perfect we all know that subject plus has, have plus third form of the verb plus object, ठीक है. For example, she has bought a car. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इट मींस कि जो हमारा एक्शन है दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, एक्शन पहले ही हो चुका है, बट वी हैव रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन, ठीक है, हमारे पास उस एक्शन का रिजल्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट ही हैज बॉट अ कार, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके पास अभी कार है, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ he had bought a car, तो what does it mean? It means कि he had bought a car, उसके पास कार थी, उसने खरीदी थी, बट अभी at present उसके पास वो कार नहीं है. तो the planned launch has drawn attention. Let us read the following sentences. The planned launch has drawn attention from opponents of nuclear power. Scientists have been working for 17 years on the 9-year voyage to Pluto. ये हमने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है. The scientists have been working for 17 years on the 9-year voyage to Pluto. जो प्लूटो की 9 ईयर की जर्नी थी उसके लिए वर्किंग कितने साल तक चली थी, 17 years तक. तो in sentence 1 has drawn is an example of present perfect, ठीक है. तो हैज ड्रॉन जो है वो एग्जाम्पल है. हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है.
which is described to use a complete action. ठीक है, इसका मतलब होता है the action is completed, action जो है वो already completed है. In sentence 2, have been working means the action is still in progress, और इसीलिए इसे present perfect continuous बोला जाता है. ठीक है, continuous means the work is still in progress. For example, if I say I have been living in this house since 1992, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी रह रही हूँ इस घर में. हाँ, 1992 यानी पास्ट में मैंने शुरू जरूर किया था रहना, बट इट डजंट मीन कि मैं अभी नहीं रह रही हूँ. तो एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन जो है वो अभी भी प्रोग्रेस में ही होगा. सेकेंड थिंग, वी यूज ऑफन यूज फॉर एंड सिंस विद इट. हम ज्यादातर मैक्सिमम टाइम फॉर या सिंस यूज करते हैं जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. ठीक है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है. जैसे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ठीक है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया. 2 hours मीन्स दे आर प्लेइंग फॉर 120 minutes. और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है. जैसे I have been living in this house since 1992. तो 1992 ईयर है और वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है. So let us do this. Complete the following sentences by putting the present perfect or present perfect continuous forms of the verb in the bracket. I would like that you should participate. It will help you to understand and to clarify your doubt. So let us do the sentence 1. I hope आपको समझ आ गया है. I hope it is clear to you. So Yes, ma'am. okay, let us do this. My cousin built his house for nearly 1 year. बताओ, हैज बिल्ट आएगा या हैज बीन बिल्डिंग आएगा? हैज बिल्ट आएगा या हैज बीन बिल्डिंग आएगा? बताओ. कजन है, सिंगुलर है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Building. हाँ, हैज बीन बिल्डिंग, क्योंकि एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है अभी, तो दैट्स व्हाई विल यूज हैज बीन बिल्डिंग हिज हाउस फॉर नियरली 1 year. ओके, नेक्स्ट, वी डैश फिनिश आवर ब्रेकफास्ट एंड आर रेडी टू लीव. तो क्या आएगा यहाँ पे? We have finished our breakfast. That is why we are ready to leave. ठीक है, तो यहाँ पे present perfect tense हम यूज करेंगे. Next is she dash her bike. It is ready to be used. बताइए. She has repaired her bike. It is ready to be used. जब use के लिए तो it is action complete हो गया है, and that's why we will use has repaired. Next, my grandfather has a backache. He dashed the plants since morning. Since और for जो है वो usually present perfect continuous में ही होता है. ठीक है, तो he has in the plants आएगा. ठीक है, he has been watering the plants. The roads are full of water. It dash rain since yesterday. बताइए. Has been. Yes, it has been raining since yesterday. Very good. Next is he dash smoking. Has stopping. He has stopped smoking. Very good. Next is Rahul dash on the piano since he was 6. Has been. Since has been playing. ठीक है, अभी भी वो बजाता है. The bell dash for the last 5 minutes. That I want.
The telephone bell has been ringing for the last 5 minutes. ठीक है, for है तो नेचुरल सी बात है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यहाँ पे यूज करेंगे. नेक्स्ट इज Rita has no money left. She dash for the whole day. Has been ringing. She has been shopping for the whole day. Next, Neha, a part-time job for nearly 3 years. नेहा हैज बीन डूइंग. ठीक है, हैज बीन डूइंग आएगा यहाँ पे क्योंकि अ पार्ट टाइम जॉब फॉर नियरली 3 years है, तो दैट्स व्हाई. नाउ लुक एट दीस सेंटेंसेस. वी आर गोइंग होम. I know it isn't easy. They are coming today. So what you have understood from these sentences, we have understood कि यहाँ पे simple way में नहीं लिखा हुआ है, we are नहीं लिखा हुआ है, rather contraction use किए हुए हैं. ठीक है, we are, isn't it. ठीक है, यहाँ पे भी not की जगह isn't लिखा हुआ है, they are लिखा हुआ है instead of they are. So what do you notice about the underlined words? They are short forms of contractions of two words. The apostrophe is inserted in place of a missing letters or letters. ठीक है, apostrophe लगा देते हैं हम. अगर हमें कोई लेटर छोड़ना होता है तो हम apostrophe लगा देते हैं, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी कहीं पे भी apostrophe लगा देंगे और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं होगी. कॉन्ट्रैक्शंस का भी अपना एक रूल होता है. ठीक है, जैसे वी आर की कॉन्ट्रैक्शन आर. ठीक है, वी आर की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? वी और बाद एक अपोस्ट्रोफी और आर ई. ठीक है, इजंट किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? इज नॉट की. दे आर किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? आर की. वी किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? वी हैव. दे वुड किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? दे एंड अपोस्ट्रोफी ड. हम सिर्फ नहीं लगा. ठीक है, सो कैन यू राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग? बोलिए. लेट अस डू इट. आई. वेरी गुड. Next. It is. It is. Next. They have. They have. Next. Have not. Have not. Does Next. not. Does not. Very good. Do Do not. not. Do not. Next. Did अच्छा, not. इसको क्या बोलते हैं? What do we call it? Did not नहीं बोलते इसको, didn't बोलते हैं. ठीक है, didn't बोलते हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो didn't होती है और इसकी कॉन्ट्रैक्ट फुल फॉर्म क्या होगी? डिड नॉट. दे वुडंट, तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? दे वुड नॉट. I had. आई, इसकी क्या होगी? आई Had. वुड. ठीक है, द जो है वो यूजुअली हम वुड के लिए यूज करते हैं. ठीक है, next is she is. And now let us do the short form of the verb. ठीक है, they have not. They haven't. ठीक है, haven't आ जाएगा. हाँ, very good. We weren't आ जाएगा. ठीक है, were के बाद apostrophe और हाँ, we would, we के बाद apostrophe और d आ जाएगा. he के बाद apostrophe s आ जाएगा. u के बाद apostrophe r ही आ जाएगा. ठीक है, so let us do now pronunciation और word stress. इसके लिए मैं आपको ना एक पहले आपको एक वर्ड स्ट्रेस की दिखाती हूँ that I have made for my students. ठीक है, तो ये हमने किया कल वैसे साउंड ऑफ फिश. जब मैंने कहा था कि अल्फाबेट्स जो हैं, दो दे आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश बट वी हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश. और जो 44 साउंड्स में 12 प्लस 8. ठीक है, यानी कि 20 साउंड्स जो हैं वो वॉवल साउंड्स हैं और 22 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और बाकी 2 जो साउंड्स हैं वो सेमी वॉवल्स में आते हैं. तो वॉवल्स मोनोप्थॉन्ग्स. ठीक है, दे आर 12 इन नंबर. जो सिंगल साउंड होती है जैसे ई, सीट में हम बोलते हैं, सिट में छोटी बड़ी इस तरह से होगा. ठीक है, देन कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश हैं जैसे प, ब, ट, ड, क, ग,
ये सारे हमने किए थे, ठीक है। ये आपको कुछ वर्ड्स मैंने बोला था कि ये प्रैक्टिस कर लो, जैसे वाइन, वाइन, ठीक है, वाइल, वाइल, दिस वी हैव डन यस्टरडेज इन यस्टरडेज क्लास, ठीक है। नाउ वी विल डू व्हाट इज वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। In English, we do not say each syllable with the same force or strength. In one word, we accentuate one syllable, ठीक है। Now, what is syllable? आपको syllable समझने की जरूरत है कि syllable क्या होता है। सिलेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि किसी भी सिलेबल से ही उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिसाइड होती है। वन सिलेबिक वर्ड्स कौन से होते हैं जिनमें वन सिलेबल होता है। नाउ व्हाट इज वन सिलेबल? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से द वर्ड गर्ल, ठीक है, GIRL, तो इसमें एक ही वॉवल है आई, तो ये एक वन सिलेबिक वर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर देती हूँ गर्लिश, तो गर्ल आई और इश आई अगेन, ठीक है, तो ये टू सिलेबिक वर्ड्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वर्ड देखिए, लेट अस स्पीक दीज थ्री वर्ड्स, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर एंड फोटो, यहाँ पे आधा फोटोग्राफिक। डू दे साउंड द सेम व्हेन Photographic. हाँ, फोटोग्राफिक। डू दे साउंड द सेम व्हेन स्पोकन? नो, क्योंकि फोटोग्राफ में हमने टी पे स्ट्रेस दिया था, फोटोग्राफर, ठीक है, फोर पे स्ट्रेस दिया था, और फोटोग्राफिक लास्ट में स्ट्रेस आ गया था। ऐसे ही होता है वर्ड स्ट्रेस, वन सिलेबल से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और थर्ड से फोर्थ में वो शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। One syllable in each word, and it is not always the same syllable, so the shape of each word is different, pronunciation of each word is different. अब rules of word stresses in English, rules क्या है? Stress on first syllable of noun and second syllable of verb, ठीक है। जो ये एक द बेस्ट रूल है, बेस्ट रूल कह सकते हैं आप इसको, और ये आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं कि अगर तो आपका वर्ड जो है वो नाउन है, तो जो आपका स्ट्रेस आएगा वो फर्स्ट सिलेबल पे आएगा। अगर आपका वर्ड जो है वो वर्ब है, ठीक है, तो आपका स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें दो सिलेबल हैं, एक PRE और एक SENT, ठीक है। तो जो जिसको हमने कैपिटल में किया हुआ है वो स्ट्रेस वाला वर्ड है, ठीक है, प्रेजेंट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क पे स्ट्रेस है, डेजर्ट, ड पे स्ट्रेस है, एस्कोर्ट, ठीक है, ई पे स्ट्रेस है। नेक्स्ट इज जैसे एक्सपोर्ट, अगर एक्सपर्ट, सेम वर्ड्स अगर नाउन वर्ब में आते हैं, जैसे कि ये वाला इसमें है प्रेजेंट, ठीक है, तो स पे स्ट्रेस देंगे, एक्सपोर्ट प पे स्ट्रेस देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट पे स्ट्रेस देंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो ट पे स्ट्रेस देंगे, डेजर्ट, ठीक है, ये वर्ब्स थी, दैट्स व्हाई वी हैव शिफ्टेड द स्ट्रेस। समझ आया आपको? कुछ और रूल्स होते हैं इसके। देखिए ये जो वर्ड स्ट्रेस है ना, वी कैन नॉट डू इट इन वन क्लास, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट स्टिल एटलीस्ट अगर आप बेसिक रूल्स अगर आप समझ गए तो इट विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड। हमें प्रोनाउंसिएशन पता होती है, हम प्रोनाउंस सही करते हैं, लेकिन हम अगर उसके ऊपर स्ट्रेस गलत दे देंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन का मजाक बन जाएगा। जैसे एक वो था पार्टी हो रही है, ठीक है, तो उसमें वो गलत वर्ड पे स्ट्रेस देती है, और दैट्स व्हाई उसका इतना मतलब इतने मीम्स और इतने सब चीजें बन जाती है। दो शी मे हैव बिकम फेमस, बट to become famous due to wrong reason is not also always good. Okay, so you must understand कि जब आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो स्ट्रेस आपको किस पे देना है। अब हम क्यों अमेरिकन इंग्लिश को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रेस है वर्ड को बोलने का जो एक्सेंट है वो हमारे से डिफरेंट है, ठीक है। हम ब्रिटिश इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं क्योंकि हम
शायद हम उनके अंडर थे, हम उनके गुलाम थे, और उनका एक्सेंट, दूसरा मेन रीजन क्या है, उनका एक्सेंट और हमारा एक्सेंट सेम है, ठीक है, तो दैट्स वाई। लेकिन आज जो इंग्लिश, द वर्ल्ड फेमस इंग्लिश है, वो इट इज डिसाइडेड बाय आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है, और उसी ने ये सारे वर्ड्स पे जो स्ट्रेस है वो हमें बताया है। तो बेसिकली आप छोटे छोटे से अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो, it will help you to pronounce the word correctly. Okay, so verbs ending with ate are accented on the last syllable, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि जो वर्ड्स ए से एंड होते हैं वो उनको लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस किया जाता है, जैसे नरेट, ठीक है, ट्रांसलेट, डिक्टेट। IC और ICS वाले वर्ड्स, द सिलेबल प्रीसीडिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड, जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक, एकेडमिक, ठीक है, आर्टिस्टिक, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, एथिक्स। तो जो ये भी प्रोसीडिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड, जो उनके पहले IC और ICS से पहले वाला वर्ड होगा उस पे आप स्ट्रेस देंगे। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे इसको एकेडमिक बोलते हैं, एकेडमिक बोलते हैं, ठीक है, बट द स्ट्रेस इज ऑन ड, तो एकेडमिक बोलना चाहिए इसको, ठीक है। जैसे अगेन बोलते हैं, इट्स अगेन, ओके। ITY, अगर ITY वाले वर्ड होते हैं, द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड इज एक्सेंटेड, ठीक है, जो पीछे से सिलेबल थर्ड होगा। काउंट कैसे करने हैं सिलेबल, आप वॉवल से काउंट कर लीजिए, जैसे थर्ड से क्वालिटी, ठीक है, तो यू है, ए है और आई, 3 सिलेबिक वर्ड है, 3 सिलेबिक वर्ड है, तो पीछे से थर्ड कौन सा है, यू, ठीक है, यू और ए, तो दैट्स व्हाई ये आ जाएगा क्वालिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, तो ट पे आपका स्ट्रेस आ जाएगा। जो मैंने कैपिटल में किए हुए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस द वर्ड्स correctly. Then we have TION, the syllable preceding the suffix is accented, जिसे pronunciation, ठीक है। कितने सारे बच्चे इसको pronunciation और पता नहीं क्या क्या, प्रो पे जो है वो स्ट्रेस नहीं है, स पे स्ट्रेस है, pronunciation, documentation, yes, very good. Mutation, if you will repeat with me, it will help you to open your jaws, ठीक है। हम बहुत अपनी फिजिक को सही रखने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बट व्हेन वी हैव टू स्पीक करेक्टली, तो इवन देन वी हैव टू यूज आवर जॉ करेक्टली, हमें उसको भी प्रॉपरली इनकी भी जॉस की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, ओके। जैसे प्रोनाउंसिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, म्यूटेशन, सो these are some of the words, ठीक है। Sentence intonation that we will do later. Let us do from your ठीक है, let us do now this. Say these words after the teacher using the correct stress, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये कॉमा दिया हुआ है ना, दिस इज मार्क्ड एज स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस मार्क बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू स्पीक। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, आपको ये वर्ड दिया होगा और आपको स्ट्रेस मार्क करना है, ठीक है। स्ट्रेस मार्क करने का रूल क्या है, अगर 1 सिलेबिक वर्ड है तो फर्स्ट सिलेबल पे आता है, 2 सिलेबिक वर्ड है तो इट डिपेंड्स कि अगर 2 सिलेबिक वर्ड है तो वर्ड नाउन है कि वर्ब है। अगर तो आपका वर्ड नाउन है तो आप फर्स्ट सिलेबल पे लगाएंगे, अगर आपका वर्ड वर्ब है तो आप सेकंड सिलेबल पे लगाएंगे। जैसे एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर नाउन है तो ई पे स्ट्रेस लगेगा, और अगर वर्ब है तो पी पे स्ट्रेस लगेगा। सो यू हैव टू कीप दीज रूल्स इन योर माइंड, बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं कोई वर्ड तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इट कम्स आउट फ्रॉम आवर लंग्स, ठीक है, लंग्स के थ्रू एयर बाहर आती है, and then there is some kind of obstruction at pharynx, larynx or anywhere else, ठीक है, और वहीं से जो हमारा वर्ड का स्ट्रेस है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जहां पे भी एयर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आएगी वहीं पे हम स्ट्रेस मार्क कर लेंगे। इसके रूल आपने कर लिए ATA,
अगर है तो उससे पहले वाले पे आएगा, ठीक है। IC है तो पीछे से थर्ड वाले पे आएगा। सो सम ऑफ द रूल्स इफ यू विल कीप इन योर माइंड इट विल हेल्प यू। जैसे देखो एकेडमिक, ठीक है, ये आपको पता है कि IC है इसमें, तो IC से अब आप पीछे से थर्ड देख लीजिए तो दैट इज D, ठीक है। तो इस पे स्ट्रेस आ गया। अब इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल न पे स्ट्रेस देंगे आप। होराइजन्स, ठीक है, ज पे आपने स्ट्रेस दिया। एजेंसी, ए पे आपने स्ट्रेस दिया। CY में भी पीछे से थर्ड पे ही लेके जाते हैं हम स्ट्रेस। लेबोरेटरी, तो ब पे आपने स्ट्रेस दिया। इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, तो आपने पीछे से ग पे स्ट्रेस दिया। वॉयज, व पे स्ट्रेस। जनवरी, ज पे स्ट्रेस आएगा। एकेडमिक, ड पे आपका स्ट्रेस आया। रेडिएशन, र पे स्ट्रेस आया। वैसे र जो है वो वीकेस्ट कॉन्सोनेंट मानते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, स्पेशली जब आर के पहले या बाद में वोवल आता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी आर के बाद में वोवल आया हुआ है, बट यहाँ पे आर प्रोमिनेंट पोजीशन पे है क्योंकि आर जो है वो इनिशियल पोजीशन पे यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, असेसिंग, Instagram, Twitter, and LinkedIn. So these are the words. You have to practice these words. It will help you to mark correct stress. So let us sum up. हमने आपने जो भी आंसर्स दिए हैं वो यू कैन चेक फ्रॉम हियर, आप चेक कर सकते हैं। जो आपने नहीं दिए थे जैसे हाइक मैसेंजर, यूट्यूब, दैट आल्सो यू कैन डू। ऑडियो टेक्स्ट जो हमारे पास नहीं थी वो you can do from here also, and then you can check your answers. Okay, so you can check your answers from here. Let us move towards the unit 2, the floating markets of Thailand. Have you ever heard about the floating market of Thailand? Have you heard about this floating market of Thailand? Okay, so let us move forward. Objectives in this unit, you will be able to see, able to read an expository piece and understand its main points, comprehend new lexical items. Okay, main objective is to improve your vocabulary. The words market and mall are places where one can buy things. Okay, और ये एक these are some of the here are few more names of different kinds of shops और places where one can buy things. मार्केट और मॉल, आपको पता है मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो आप वहां से सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है। यू बाय थिंग्स, ये और है, ठीक है। एक कायोस्क है, और शोरूम है, टेक अवे है, फैक्ट्री आउटलेट है, ठीक है। शोरूम क्या होता है? विच हैज अ प्लेस विच हैज मेनी शॉप्स ऑफ मेनी शॉप्स अंडर वन रूफ, ठीक है। और ठीक है, टेक अवे क्या होता है? जहां से आप मतलब आइसक्रीम, सिगरेट, न्यूज़पेपर या कुछ भी जो है वो लेके जा सकते हैं। आपको वहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आप वहां से लेके जा सकते हैं, वहां खड़े होके खा सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है? जैसे लार्ज शॉप है, स्टोर्स हैं इन विच गुड्स फॉर सेल्स आर डिस्प्लेड। जैसे NH1 में है, अंबाला में फैक्ट्री आउटलेट। तो आकाश क्या है? अ प्लेस विच हैज many shops of gold under one roof. वो that is a gold shop, ठीक है। Okay, let us read the passage. In every country, market of different kinds exist. In India, for instance, one can see the posh shopping areas and multi-storied malls on the one hand and small weekly bazaars on the other. ठीक है, हर कंट्री में अलग अलग तरह की मार्केट होती है। इंडिया में भी ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग एरियाज हैं, बड़ी बड़ी पॉश मल्टी स्टोरीड मॉल्स हैं, और साथ ही यहाँ पे वीकली बाजार भी लगते हैं। जैसे अंबाला कैंट में लगता है सोम बाजार मंडे को, ठीक है। और अंबाला सिटी में लगता है थर्सडे मार्केट, वीरवार की मार्केट। बहुत सस्ती आपको चीजें वहां मिल जाती हैं। दिस बाजार इज अ काइंड ऑफ मोबाइल मार्केट दैट शिफ्ट फ्रॉम एरिया टू एरिया ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ये जो वीकली बाजार होते हैं, ये जैसे आज अंबाला में है मंडे थर्सडे,
तो कल शाहबाद में होगा, ट्यूसडे और लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपनी चीजों को शिफ्ट करते हैं एंड देन दे सेल देयर थिंग्स। The shopkeepers need nothing but some clean pavement or some open space to settle on as they carry on their interaction, ठीक है। शॉपकीपर्स को क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं चाहिए होता उनको, कोई जगह नहीं चाहिए होती, बस एक क्लीन स्पेस चाहिए होती है जहां पे वो अपनी चीजों को डिस्प्ले कर सके। Then there is common and easy to locate shopping centers in every residential block। फिर कुछ शॉपिंग सेंटर होते हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में। दो स्मॉल इट हैज ऑल द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हालांकि छोटे होते हैं ये, बट इनमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। It has a green grocer shop selling daily provisions and items of food, a stationer, a hair cutting saloon, a dry cleaner and a gift shop, ठीक है। फिर छोटी छोटी और शॉप्स होती हैं जैसे कि ग्रोसरी की, फूड आइटम्स की, स्टेशनरी की, सलून भी हो सकता है छोटा सा, ठीक है, ड्राई क्लीनर की शॉप होती है या फिर गिफ्ट शॉप। वी ऑल्सो हैव द ह्यूज होल सेल मार्केट डिवोटेड टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स, बी इट ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स और होइस्ट्री। फिर हमारे पास और बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं जिसमें ऑटोमोबाइल के हमें पार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, या फिर हॉइस्ट्री की मार्केट होती है। Just as the cities of different countries boast of markets for people to shop in, the rivers of Thailand offer colorful markets, ठीक है। इसीलिए इसका नाम फ्लोटिंग मार्केट है। और जैसे हर सिटी की, हर कंट्री की अलग अलग मार्केट्स होती हैं, इसी तरह से जो थाईलैंड की रिवर मार्केट है ना, वो सबसे ज्यादा कलरफुल होती है। विच सेल वेरियस काइंड्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड हैंडीक्राफ्ट। देखो अगर आपको फोटो दिख रही है तो ये कहाँ लगी हुई है मार्केट, बताओ? इट इज इन द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग वन कैन सी अ सेंस ऑफ हेक्टिक एक्टिविटी ऑफ बार्गेनिंग, बाइंग एंड सेलिंग हियर। आप यहाँ पे खरीद भी सकते हैं, सामान को बेच भी सकते हैं। और मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही, ज्यादातर ये सुबह सुबह ही होती है मार्केट, और सुबह सुबह ही आपको मतलब लगेगा भी नहीं कि ये सुबह के 4 बजे मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। देखो यहाँ पे कैप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दे हैव द फ्रूट्स एंड ऑल। तो हर तरह की चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। These floating markets are called talat naam in Thai, ठीक है, तलात नाम बोलते हैं इनको थाई में। These are made up of large clusters of boats, बड़ी बड़ी boats होती हैं, उनका cluster होता है, which serve the purpose of both sales counter and transport vehicles for the farmers who gather here to sell their wares every morning। हर morning में यहाँ पे sellers जो है अपने अपने सामान बेचने आते हैं। As dawn breaks over the horizon, small wooden boats paddled by women snake their way towards the market। छोटी छोटी मतलब वुडन के बोट्स लेके और ये उन पे बैठ जाते हैं। One can see these women almost always in the blue dress that is common amongst the farmers of Thailand। ज्यादातर ये जो women हैं ये they wear blue color dress, ठीक है, जो कॉमन कलर है फार्मर्स का थाईलैंड में। On their heads, on the women wear flat topped conical hats that one can find in all parts of this country। फिर ये धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए they wear hat also, ठीक है, हैट पहनते हैं ये लोग। The boats are laden with the produce from the nearby orchards and community farms। और इन बोट्स में प्रोड्यूस क्या होता है, मतलब फसल, जो नियर बाय ऑर्चर्ड्स में, ठीक है, हम ऑर्चर्ड्स होते हैं जैसे बाग, ठीक है, सेब के बाग हैं, आम के बाग हैं, या कोई भी बाग है वहां से, और कम्युनिटी फार्म से फ्रेश ये सामान लेके आते हैं। देयर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्रूट पाया जाता है। फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे ऑफर अ वेरी कलरफुल साइट। और बहुत ही ज्यादा सुंदर कलरफुल साइट होती है। The boat vendors trade their agriculture produce largely by the traditional barter system। में ही है। ज्यादातर yes, you want to say something, Gopal? Okay, तो ये जो है barter system से usually they sell। For the tourists there are baskets and cane products, clothes and other handmade items।
और जो टूरिस्ट है उनके लिए बास्केट्स होती हैं या केन के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कपड़े होते हैं या फिर हैंडमेड आइटम्स होती हैं जो वो लेके जा सकते हैं अपने घर, विच दे कैन बाय फॉर मनी. टूरिस्ट throng to the markets coming from the cities by bus. लोग बसों से आते हैं. The most popular floating market is Ratchaburi province, about 101 kilometers from Bangkok, the capital of Thailand. और बैंकॉक जो थाईलैंड की कैपिटल है उससे लगभग 100 किलोमीटर्स अवे है राजचैबरी की मार्केट. ये सबसे बेस्ट मार्केट मानी जाती है थाईलैंड की. बैंकॉक टू हैज फ्यू फ्लोटिंग मार्केट्स ऑफ इट्स ओन. बैंकॉक में भी अपनी कुछ फ्लोटिंग मार्केट्स हैं. द टालिंग चैन मार्केट इज राइट इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ टालिंग चैन. और जो टालिंग चैन मार्केट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने है. The floating markets always open in the morning, some as early as 4 AM. ठीक है, लगभग 4 बजे ये खुल जाती हैं. There is hectic trading among the vendors and buying and selling with the tourists till late in the morning. By about noon time, all the vendors would have left only to return again early the next morning. और afternoon तक यानी कि 12-1 बजे तक लगभग ये अपनी मार्केट पूरी वाइंड अप कर देते हैं so that they can come again in the next morning. Many of these markets open daily while some operate only on weekends. कुछ मार्केट जो है डेली खुलती हैं, कुछ सिर्फ वीकेंड पे खुलती हैं. द डेमियन साटुक मार्केट इज ओपन डेली. अब ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे ये. द डेमियन साटुक मार्केट जो है वो डेली खुलती है while the टालिंग चैन मार्केट इज वीकेंड मार्केट. ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये बताया हुआ ना यहाँ पे कि जो टालिंग चैन मार्केट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने है, तो नेचुरल सी बात है हर रोज तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुलता है तो वो कैसे मार्केट लगाएंगे, इसलिए ये वीकली मार्केट आप याद रख सकते हैं इसको. In fact, Thailand's floating markets are so popular amongst the tourists that hardly anyone ever goes away without buy something or taking a picture of the colorful market. इतनी पॉपुलर है ये फ्लोटिंग मार्केट थाईलैंड की कि शायद ही कोई टूरिस्ट बिना यहाँ से कुछ लिए या बिना फोटो लिए यहाँ से आता होगा. Some of the popular markets are Dam Sadok जो डेली खुलती है, फ्लोटिंग मार्केट टालिंग चान जो वीकेंड पे खुलती है, देन था खा फ्लोटिंग मार्केट एंड बंगहू व्यांग फ्लोटिंग मार्केट. ये उनके नाम है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट नेम्स. दीज मार्केट्स गिव वन अ ग्लिम्स ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन थाईलैंड. तो आप देख सकते हैं ग्लिम्स क्या होता है, झलक. ठीक है, आप इन मार्केट्स के थ्रू ट्रेडिशनल वे ऑफ थाईलैंड देख सकते हैं कि थाईलैंड में लोग कैसे रहते हैं. Looking at them, one can imagine how daily life must have been in the earliest times. कि earliest time में daily life उनकी कैसी होती होगी. Efforts are being made to revive the old markets and recognize them to attract more tourists. और जो ये है markets जो है ये इसलिए भी है so that they can attract tourists. So if you want a real taste of Thailand and wish to fully appreciate a floating market, you should get up really early. और अगर आपको थाईलैंड का मतलब पूरा रियल टेस्ट ऑफ थाईलैंड लेना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और हायर करो. ठीक है, अ लॉन्ग टेल बोट फॉर द डे. और यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हैं. बोट राइड के साथ साथ along with the river will also enable to you to see Thai homes and gardens. Gardens भी देख सकते हैं, Thai homes भी देख सकते हैं, and you can buy the things for yourself. Okay, so let us read answer the questions. What are the different kinds of markets that you can usually find in India? Daily markets, ठीक है, showrooms, then weekly markets we can find in India. Though small, the local shopping center serves a great purpose. Can you say how? Yes, क्योंकि जो लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं दे हैव एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल. और अब लॉकडाउन में तो यही लोकल शॉपिंग जो गलियों की दुकानें खुली थी इन्हीं से लोगों का काम चला है. तो डेफिनेटली लोकल जो शॉपिंग सेंटर्स है दो दे आर स्मॉल बट दे हैव एवरीथिंग फॉर द survival. That's why they are very important for us. How does the Talat Nam, the floating market of Thailand, differ from other markets? Cite 2 examples. Talat Nam क्या है? क्योंकि they are floating markets in the rivers. So what is the main commodity sold on these markets?
मेन कॉमोडिटी क्या है? क्रॉप्स, मतलब प्रोड्यूस बेचते हैं ये जो फार्म्स हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं इनके पास, फिर हैंडमेड चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट है, ये सब मिलेगा आपको इन मार्केट्स में। हु आर द वेंडर्स इन द मार्केट? जो लोकल लोग होते हैं वही वेंडर्स होते हैं वहां पे। व्हाट सिस्टम ऑफ ट्रेड डू दीज वेंडर्स फॉलो? बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं ये, ठीक है। हाउ डज द डेमियन सडक मार्केट डिफरेंट फ्रॉम द तेलिंगचान मार्केट? बता दो कोई, इफ यू आर लिसनिंग। डेमियन सडक मार्केट जो है तेलिंगचान से कैसे डिफरेंट है? डेमियन सडक इज अ डेली मार्केट, डेली खुलती है ये, वाइल तेलिंगचान इज अ वीकली मार्केट, ये सिर्फ वीकेंड पे खुलती है, ठीक है, सैटरडे संडे। What are the added benefits of taking a boat ride to the market? बोट राइड के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, थाई होम्स देख सकते हैं, थाई जो लोकल थाई लोग हैं उनको यू कैन सी। सो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू एवर गो टू बैंकॉक, एंड इट इज जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे। बैंकॉक में भी है कुछ मार्केट, बट इफ यू गो टू दिस राजचरी मार्केट इट विल हेल्प यू to understand or to have the real taste of Thailand. Okay. Read the sentences given below and say whether they are true or false. True false बताइए. The vendors of a mobile market really do not need any shops to sell their goods. True. True, क्योंकि वो कहीं पे भी अपना अपना जो है वो डिस्प्ले लगा देते हैं. The Talat lanes open by mid morning and close by the evening. False. False, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे खुल जाती है. इफ वन विशेस टू बाय फ्रेश फ्लावर्स वन मस्ट गो टू फ्लोटिंग मार्केट. True. True. These floating markets are often quite noisy places. True. ट्रू, क्योंकि हसल बसल पूरी होती है यहाँ पे, बार्गेनिंग होती है, लोग आपको जैसे पकड़ पकड़ के बुलाते हैं, इधर आओ, ये ले लो, बाय दिस लाइक दिस, ठीक है, तो बहुत नॉइजी प्लेसेस होते हैं. टूरिस्ट कैन बाय हैंडीक्राफ्ट ऑफ केन एंड द लोकल ड्रेस मटेरियल फ्रॉम दीज फ्लोटिंग मार्केट्स. True. True. Going to these colorful markets gives you no idea about the traditional market system of Thailand. False. False. If one wishes to see the Talatnam in full swing, one needs to get up early and go there. True. True. If there are so many floating markets, then there must be many canals or rivers in Thailand. Yes. True. Yes, true. ठीक है, क्योंकि अगर फ्लोटिंग मार्केट्स इतनी है तो डेफिनेटली वहां पे रिवर्स हैं, तभी तो वहां पे फ्लोटिंग मार्केट इतनी ज्यादा पॉपुलर है. So this is your progress. Match the words in column A with their meaning. This you can do. ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं. Let us move forward. Given below are certain actions, words that are thematically related to markets. Read the sentences given below and complete them using appropriate words. जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? बाइंग, खरीदना, सेलिंग, बेचना. ट्रेडिंग होता है जब आप ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं. व्यापार जब आप करते हैं तो आप यू फॉलो सेट रूल्स, ठीक है. बार्गेनिंग जब आप पैसे कम करवाते हैं. हॉकिंग जब आप बुलाते हैं, ठीक है, अपने स्टॉल्स पे. डीलिंग जब आप कुछ डील करते हैं. सो लेट अस डू दिस. The natives on the island sometimes came to the shore dash their handicrafts for items of daily use. बताइए क्या आएगा? Trading their handicrafts for their items of the daily uses. Okay. This is very popular market for the common man and often there is a lot of dash before a deal is struck. Bargaining. Bargaining. Yes, bargaining. Nowadays one can find people dash different kinds of things to the motorists waiting at the traffic lights. Hawking. Selling, ठीक है. Selling different kinds of बेचते हैं ना वो सामान को. Yes, ma'am. Dashing garments has become a more profitable business. Dealing. Dealing in garments.
Next, dash a house with your life savings makes better sense than investing in it in an expensive car. Buying a Buying house. a house. Very good. Next, on the pavements, one can often see people dash things from boiled eggs to ballpoints, pencil calculation. Hawking things. One can often see people selling things, okay, from boils. Look up the Okay, let's okay. look up the word bargain in the dictionary and understand the various ways the word can be used idiomatically. Now read the sentences. Bargain for, ठीक है, drive a hard bargain, bargain away or in the bargaining. ये these are some of the phrases, ठीक है. ये bargain को as a phrasal verbs भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज लिसनिंग फॉलोइंग डायरेक्शंस. अब क्योंकि वी डोंट हैव अगेन दिस थिंग, so we cannot listen, that's why we will move forward. Speaking dialogues, we often have to go and buy things from the shops where only English is understood. Let us see what these people are saying at the shops. Listen to the audio. So listening text, the text is, lady, may I have a copy of Oxford Dictionary? Shop assistant, of course. Here you are, ma'am. Lady, and could I have the latest book of Mr. Selwell? Shop assistant, sorry, we have run out of copies. ठीक है, तो आपको ये phrase जो है, जैसे run out, ये run out of copies मतलब कि अब हमारे पास उसकी copies खत्म हो गई हैं. तो next is, old man, have you got any woolen socks? Sales girl, what size do you want? Little girl, may I have a box of color pencils, please? एंड शॉपकीपर सर्टेनली. ठीक है, जब आपके पास कोई चीज होती है, प्रोडक्ट होता है, तो यू कैन आंसर सर्टेनली. सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से है. यंग मैन, आई वुड लाइक सम शेविंग क्रीम. श्योर, विच काइंड यू वांट, कि कौन सी आपको चाहिए. Work with a partner, select appropriate phrases from the box and ask for thing. जैसे प्लीज आप यूज कर सकते हैं. कुड आई हैव, कुड जो होता है वैसे इट इज अ वेरी पोलाइट मॉडल, ठीक है. तो आप इसमें से यूज कर. कुड आई हैव सम टी, क्या मैं थोड़े चाय पी सकता हूँ. हैव यू गॉट सम ऑरेंजेस, ठीक है. मे आई हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स, मे आई हैव अ सैंडविच और whatever, ठीक है. I would like a pair of green slacks, please. Can I get two lithium batteries, or can I get some bread, please? So these are some of the phrases which you can, models which you can use and in your day-to-day conversation, ठीक है. These will be the answers. Sure, here you are. Yes, certainly. कितना चाहिए, how much many would you like? I'm sorry, but we have run out of them, ठीक है. What size do you want and so. Let us do now passive without an agent, ठीक है. Passive without an agent मतलब when we don't need an agent to complete our sentence. Look at these sentences from the passage. The boats are laden with the produce from the nearby orchards and community फार्म्स. की जो बोट्स हैं उसमें पास के ऑर्चर्ड्स और कम्युनिटी फार्म से काफी सारा प्रोड्यूस होता है. दीज फ्लोटिंग मार्केट्स are made up of large clusters of boats which serve the purpose of both sales counters and transport vehicles for the farmers who gather here to sell their wares every morning. Next sentence is, these floating markets are called Salatnam in the Thai language. You will find the subject of three sentences, namely the boats. These floating markets, ठीक है. देखो पहले में क्या था, the boats, ठीक है. These floating markets और next में भी these floating markets. ये subject है इन sentences का. Are not doing the action but receive the action done by others. In the first sentence, it is obvious that the doer of the action not mentioned in the sentence are the farmers or the sellers who come to do business in the floating market.
The second and the third to indicate that the doers of an action are the people. So the sentences are in passive form. ठीक है, we had a helping verb to the past participle according to the tense or the time indicated that is shown or broken has been made. Read the following sentences and complete them using the passive forms. ठीक है, the letter dash loudly out for everyone's benefit. तो पैसिव फॉर्म्स में आपको बोलना है द लेटर. जैसे यहाँ पे हमने पैसिव फॉर्म किया था ना. पैसिव फॉर्म क्या होता है, जब इस एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, या फिर जैसे आर मेड अप लगाया हमने, इसमें आर कॉल्ड लगाया. ठीक है, तो दीज आर द पैसिव फॉर्म्स. द लेटर्स आर, बोलो, द लेटर्स आर, the letter is read loudly out for everyone's benefit. Okay, when they returned to the site of tsunami, they found that many houses were rebuilt and many makeshift shops were erected over the year. तो जब हम is am are या was were के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव फॉर्म होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, जब रिपोर्ट लिखनी होती है तो हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, तो उसमें भी हम या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं या फिर is am are या was were के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट करिए. प्रिपरेशंस डैश फॉर द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हेंस नो वन विल बी फ्री टू टॉक टू यू दिस वीक. preparations are made. ठीक है, आर के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई. ओके, नेक्स्ट इज when she returned from work she discovered that her lovely cake was ruined by the visiting monkeys. Some of it has been eaten and some has been dropped on the floor. Many families dash by the downsizing of the companies. Many young men and women lost their jobs. करो, बोलो. Were hit by. Yes, were hit by. We notice that we almost always use the passive voice without the agent in particular cases like when the doer is not known. ठीक है, when there are multiple doers or when we do not want to disclose who the doer is in legal language or in official language. So you can use these verbs. ठीक है, नीचे दी हुई है request, commit, build, pick, direct, notify and rectify, and you can use these verbs in these sentences. Okay, let us do next writing or describing places. Look at this picture and write a description of that place. ठीक है, ये पिक्चर है. जैसे आप अगर माइन्यूट से डिटेल्स देखिए कि एक नॉर्मल मार्केट है, क्लोथ सेंटर है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बिल लिखा हुआ है, STD IST यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कुछ सामान नॉर्मल बेच रहा है, ये गोलगप्पे बेच रहा है, लाइक दिस. ठीक है, सो you have to write what kind of place is this, the shops and their structure, and the kind of shops, the goods they are selling, the difference between the shops and pavement hawkers, and the people seen at the different shops. अब एक और पिक्चर है, ये मल्टीप्लेक्स मॉल की है. कंपेयर द फर्स्ट मार्केट टू दिस मॉल एंड मेंशन हाउ दिस डिफर. वो जो है पुरानी पिक्चर जो हमने ऊपर देखी, वो एक ट्रेडिशनल मार्केट है और ये मल्टीप्लेक्स है. ठीक है, जहाँ पे देखो कितने सारे शोरूम है, जैसे एलांटे की फोटो दी हुई है यहाँ पे फॉर एग्जांपल. ठीक है, फिर ये एक पार्किंग एरिया है. ठीक है, ये बच्चों का एरिया है. सो ये these pictures are taken from these sources. You can go over there and you can use them. Now the pronunciation. Listen to the following dialogue and practice it with your partner. A customer calls because she wants to know when the free service that she had been promised for 6 months after she bought a washing machine will be provided. So let us read it. Executive. Good morning, efficiency machines. This is Ramesh. How may I assist you? ठीक है, whenever you are at some place. ठीक है, जैसे आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, तो आप उसका नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, and then you will say
हाउ मे आई असिस्ट यू। तो एग्जीक्यूटिव फोन उठाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एफिशिएंसी मशीन्स, दिस इज रमेश, हाउ मे आई असिस्ट यू। कस्टमर, I bought a washing machine from your company and I was told I would receive a free service after 6 months. It had been 6.5 months. We still haven't got the free service. I was told it would be done last week, but nobody has come so far. तो परेशान है कस्टमर, फ्री सर्विस उसको अभी तक नहीं मिली है। तो एग्जीक्यूटिव बोलता है आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दैट मस्ट हैव अपसेट यू, आई विल अरेंज फॉर अ सर्विस इंजीनियर टू बी सेंट टू योर प्लेस टुडे। और वो बोलता है टुडे आई विल सेंड यू अ सर्विस इंजीनियर। कस्टमर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई नीड टू कॉल एंड रिमाइंड यू ऑफ दिस, कि अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे कॉल करके आपको क्यों बताना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस एंड एश्योर यू दिस वोंट हैपन अगेन। इन फैक्ट आई विल पुट इन अनदर फ्री सर्विस ऑन योर सर्विस कार्ड। ठीक है, क्योंकि कस्टमर परेशान हुआ तो एक और फ्री सर्विस कार्ड उसको दे दिया। ऑल यू हैव टू डू इज फिल इन द डेट ऑन विच यू वुड लाइक हिम टू कम फॉर द नेक्स्ट सर्विस एंड ही विल बी देयर। सिर्फ आपको उसमें डेट डालनी है, जिस भी दिन आप उसको बुलाएंगे वो आ जाएगा। कस्टमर, थैंक यू, एंड एग्जीक्यूटिव, you are welcome and have a good day. So this is a conversation, ठीक है, between an executive and customer. So you need to understand that when you are doing a formal conversation, you need to understand others point of view. ठीक है, दूसरे का point of view जब तक आप नहीं समझेंगे, you won't be able to converse properly. And customers, as we believe they are like gods, so we should try to pacify them, and the same has been done here. जैसे उसने इनकन्वीनियंस की वजह से उसने क्या किया, फ्री सर्विस उसको एक और दे दी। सो लेट अस सम अप with this. Okay, we have done about the various services, various markets, floating markets, Talatnam, then weekly markets, and then daily markets. Okay, and you can check your answers from here. Whatever we have done, you can check from here. So let us do the third exercise. ये बहुत ही I will try to sum up in next 15 minutes. ठीक है, ये एक टीवी न्यूज एंकर की है और ये उसकी लाइफ के बारे में है कि कैसे एक टीवी न्यूज एंकर की लाइफ जो है वो मतलब हाउ इट इज। आपको देखने में बहुत अच्छा लगता होगा, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो रीडिंग अ टीवी न्यूज एंकर, साहिल डे वर्क्स फॉर CBRC टीवी स्टेशन। He has a cool job as a TV news anchor. जैसे अगर आप इंडिया टीवी देखते हैं, जी न्यूज देखते हैं, रिपब्लिक टीवी देखते हैं, ABP न्यूज देखते हैं, NDTV देखते हैं, तो there are many news anchors which are quite famous. जैसे कि there are many of them, जैसे रजत शर्मा है, ठीक है, सुधीर चौधरी है, then we have more ones. ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा उनकी लाइफ देख के, but now read this and you will come to know that how difficult it is. Exhilarating and demanding, बहुत demanding है, is how CBRC news channel Sahil Day describes his job. Sahil Day अपनी describe करता है job को. Day has a BA in communications with an emphasis in broadcasting. While at college, he worked as a sportscaster at a tiny low-power TV station. मतलब छोटा सा एक TV station था, उस पे वो sportcaster था. Then worked 3 years at a small ABC affiliate as an anchor, reporter, and morning show host. Sahil Day is currently at CBRC TV in Jaipur city as morning news anchor and field reporter. ठीक है, वो field reporter और anchor है. A day in his life. Day is up at 3 AM. 3 बजे वो उठ जाता है. At work by 3:45 to look over scripts for the day. At 4:30 AM he spends 15 minutes in the makeup room, and at 4:45 AM he begins his newscast with a live teaser, and then he broadcasts live news from 5 to 7. ठीक है, अब देखो डे जो है वो 3 बजे सुबह उठता है, 3:45 तक तैयार होके सब कुछ पहुंच जाता है अपने ऑफिस में, 4:30 बजे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता है, 15 मिनट मेकअप करता है, 4:45 में बैठ जाता है लाइव टीजर के लिए, और 5 से 7 बजे तक वो न्यूज पढ़ता है. After the morning broadcast, he goes out on an assignment and reports live story from 7 to 9.
उसके बाद फिर वो बाहर जाता है, क्योंकि वो फील्ड रिपोर्टर भी है, 7 से 9 तक वो बाहर रिपोर्टिंग करता है। आई ऑल्सो डू स्पेशल प्रोजेक्ट, फिर अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आ जाए वो भी करता है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है, कंज्यूमर एंड हेल्थ रिपोर्ट्स भी पढ़ता है। दीज आर द स्टोरीज विद द लोकल एंगल। व्हाट दे हैज टू से अबाउट इट, दिस द एडवांटेज ऑफ हिज जॉब, वो बोलता है आई गेट टू गो टू कूल प्लेसेस एंड मीट पॉलिटिशियंस एंड सेलेब्स दैट द जनरल पब्लिक डजंट यूजुअली गेट टू सी। तो वो एडवांटेज क्या बताता है अपने इसकी, कि भाई वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाता है, कूल प्लेसेस पे जाता है, पॉलिटिशियन से मिलता है, सेलिब्रिटीज से मिलता है, जो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता करने को। डाउन साइड क्या है, यू डोंट हैव अ नॉर्मल लाइफ, उसकी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। यू वर्क वियर्ड आवर्स मतलब ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है, जैसे 3 बजे, सोच सकते हो आप 3 बजे सुबह उठ के जॉब पे जाने की, डेली, नॉट वन डे, ठीक है। यू डोंट हैव नॉर्मल लाइफ, यू वर्क वियर्ड आवर्स एंड हॉलीडेज, गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को उठते हैं, क्योंकि अगर 3 बजे मतलब आपको तैयार होके पहुंचना भी है तो आप 1 घंटा और पहले उठेंगे, रात के आधी रात को उठते हैं। गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाता होगा 6, 6:30 बजे, 7 बजे, एंड आर अवे फ्रॉम योर फैमिली अ लॉट। और डेफिनेटली अगर 3 बजे घर से निकलोगे और लेट आओगे तो कैसे मिलोगे अपनी फैमिली को। What he would like to change about his job, move the morning show to 9 a.m. वो चाहता है कि 9 बजे मॉर्निंग शो हो जाए। सीरियसली, we tend to more blood and gut stories, and I would like to do more feel good stories, ठीक है। अब उसको ब्लड की से रिलेटेड जो है स्टोरीज वो कवर करता है, वो सोचता है कि कुछ अच्छी स्टोरीज को वो कवर करें। His family and other interests, I have 2 young kids and a great wife. We like to check out different restaurants and travel. I also play volleyball. उसकी 2 बच्चे हैं, वॉलीबॉल खेलना उसको पसंद है। एडवाइस फॉर एस्पायरिंग टीवी रिपोर्टर्स, तो वो क्या एडवाइस देता है उनको, गेट एन इंटर्नशिप यूजुअली अनपेड एंड प्रोड्यूस अ वीडियो ऑफ योर रिपोर्टिंग, कि इंटर्नशिप करो, ठीक है, जो कि हमेशा अनपेड होती है, और अपनी रिपोर्टिंग की वीडियो बनाओ। यू विल नीड दिस टू शो योर वियर्स, कि जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे आपको शो करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट आउट एट अ स्मॉल स्टेशन एंड वर्क योर वे अप, स्मॉल स्टेशन से स्टार्ट करो और फिर ऊपर बढ़ो। इट इज अ टफ रोड विद एन इंटेंस वीडिंग आउट प्रोसेस एज यू मूव अप द लेडर। और टफ रोड है, जैसे जैसे लेडर मतलब सीढ़ी पे आप ऊपर चढ़ते हैं आपकी जॉब और डिफिकल्ट हो जाती है। बट इफ यू स्टार्ट आउट एट अ स्मॉल स्टेशन, एवरीवन इज bad, they expect you to be bad, but you can make your mistakes and you are still low profile. The best broadcasters started small and didn't fizzle out. तो बोलते बेस्ट जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो दे आर वो उनकी स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल होती है, बट दे नेवर फिजल आउट, ठीक है, वो कभी रुकते नहीं है। सो लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज साहिल डेज जॉब? साहिल इज अ news TV anchor, and he is a field reporter too. What are Day's qualification for the job? Qualification क्या है? BA communication किया उसने. What does Day like about his job? That he used to meet people. वो उसको अलग अलग लोग मिलते हैं अपनी जॉब में, ठीक है, पॉलिटिशियन, सेलेब्स, ही यूज्ड टू विजिट एट गुड प्लेसेस व्हिच नॉर्मल पीपल cannot do. What does Day not like about his job? Weird hours, ठीक है, he wants that his show should be shifted to 9 o'clock. What are some of Day's interests outside of his job? He loves to play volleyball. What advices does Day have for aspiring TV news journalists? That they should do internship, record video, and they should start from a small workstation and then should move towards the good one. Okay, so complete the sentences. You can complete this. 3 a.m. 3 a.m. he wakes up. 3:45 he reaches at his work. 4:30 to 4:45 he does some he goes to makeup room, ठीक है। 4:45 to 5 he prepares himself. 5 to 7 he reads the news, and 9 he goes for field reporting, ठीक है। So ये कुछ वर्ड्स हैं विच यू कैन डू, ठीक है। नाउ एक पोयम है वॉल्ट विटमैन की, विच यू हैव टू लिसन, वी कैन नॉट लिसन ओवर हियर। देन देयर इज
एक और राइटिंग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये यू कैन गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ वर्किंग पीपल, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल शी इज इन अ बेकरी, ये एक ऑफिस है, ठीक है, शी इज इन द हॉस्पिटल, सो यू कैन राइट अबाउट द grammar, write about the profession of other people, ठीक है. Let us do the grammar and sum up today's lecture. तो phrasal verbs क्या होते हैं? Phrasal verbs are basic verbs, ठीक है, basic verbs होती हैं that can combine with other words. हम इनको और words के साथ combine कर सकते हैं, especially prepositions. ज्यादातर हम phrasal जो verbs हैं उनको prepositions के साथ combine करते हैं टू मेक वर्ब्स विद कंप्लीटली न्यू मीनिंग, और इससे हम नया मीनिंग बना सकते हैं. जैसे लुक जो है, इसका लुक जो है इट मीन्स देखना, लेकिन अगर हम लुक आफ्टर बोलें तो इट मीन्स देखभाल करना, ठीक है. तो हम बिल्कुल नया वर्ड बना देते हैं किसी भी बेसिक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड करके. देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ कन्वेइंग द सेम आइडिया, ठीक है. एक नया वे हो जाता है, आपकी वोकैबुलरी इनहांस हो जाती है, यू आर एबल टू यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ वेल. जैसे देखो यहाँ पे डे इज अप एट 3 AM, ठीक है. अप एट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, एट वर्क बाय 3:45 AM टू लुक ओवर, ठीक है. लुक ओवर मतलब देखना, एक नजर वो डालता है अपनी स्क्रिप्ट की कि उसको क्या पढ़ना है आज. Here to look over means to read quickly, एक जल्दी से पढ़ना. तो these are some of the phrasal verbs which helps you to increase your vocabulary. अब देखो जैसे ये हैं कुछ phrasal verbs दिए हुए हैं and you can make sentences of your own. मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने आपको, एक किया हुआ है आपके लिए, जैसे गो ऑफ, ठीक है. तो एवरी समर आई गो ऑफ ऑन अ हॉलीडे टू द हिल्स, तो आपने यहाँ पे हॉलीडे लिया, ठीक है. तो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस. चेक आउट है, जैसे आई हैव टू चेक आउट फ्रॉम द होटल. स्टार्ट आउट है, आई वांट टू स्टार्ट आउट माय न्यू बिजनेस, ठीक है. टेक बैक है, वापस लेना होता है, आई टेक बैक माय क्रूअल वर्ड्स और लाइक दैट, ठीक है. आप इनसे अपने sentences बना सकते हैं. Now fill in the gaps in the sentences below with different phrasal verbs beginning with look. Look जो है, अगर आप इसको किसी और preposition के साथ यूज करते हैं तो आप जो है इसका बिल्कुल different meaning जो है वो निकाल सकते हैं. जैसे मैंने बताया था आपको, look after देखभाल करना है, look up to मतलब किसी की तरफ देखना, look for ठीक है ढूंढना, सर्च करना, look on, look through. So we have look forward to मतलब आगे के लिए सोचना. जैसे I am dash to starting work, ठीक है. I am looking up to starting work. I am looking forward to starting work भी आ सकता है. He has always dash his elder brother. He has always look for his elder brother, ठीक है. Dash each day as if it is your last day on earth. Look up at each day as if it is your last day on earth. So you can do it, I hope. Next is these pronunciation. These words pertain to various professions. Repeat them correctly after the teacher. आपको इनकी pronunciation बता रही हूँ मैं, वो आप that is important. This you can do on your own also. So let us repeat these words with the correct stresses. Accountant, physician, pharmacist, technician, न पे stress आएगा, ठीक है. Biotechnologist, botanist, dermatologist, anesthesiologist, gastroenterologist, journalist, engineer, ठीक है. इंजीनियर ई नहीं, आप इसको बोलेंगे ऐसे बोलेंगे आप, engineer, ठीक है. engineer, veterinary physician, psychologist, psychologist नहीं होता, psychologist, ठीक है. beautician, then communication specialist, web developer, developer नहीं बोलते इसको, developer, ठीक है. web developer, network administrator, librarian, advocate and solicitor. So let us sum up. You can check your progress from here and you can check your answers. जो आपको एक्सरसाइज बताई है मैंने, वो आप करने के बाद यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ठीक है.
So I hope it is enough for today. Though we have one more unit. Do you want to ask something? कुछ पूछना है आपको? No, ma'am, everything is clear. ओके, ठीक है। एक आपको एक आइडिया मैं इसमें बता देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये मार्केट प्लेस है बगदाद काबुल में, और इसके जो मतलब ये बहुत अच्छा बहुत ही मींस इंटरेस्टिंग किस्सा है महबूब हुसैनी और अब्दुल के बीच में। आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल इंग्लिश है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे इसके आंसर्स दे सकते हैं। पिक आपको उसमें से ही पढ़ने हैं, बुक उसमें पैराग्राफ में से ही आंसर्स दिए हुए हैं। और these are some of the words which are again given here. So these are some of the smileys which we are using in our day-to-day life, ठीक है। And here you can speak or talk about वेरियस फिल्म्स, ठीक है। लेट अस डू इट नाउ। ग्रामर में दो वर्ड्स होते हैं, यूज टू एंड वुड, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ टीचर, ही वाज वेरी क्लेवर एंड विटी। वो बहुत, मुल्ला नसरुद्दीन की इतनी सारी स्टोरीज है ना, इतनी सारी, अगर आप नेट पे पढ़े तो आप हंस हंस के, आपको मतलब बहुत विटी हैं, बहुत समझदार वाली हैं, और हंस हंस के मीन्स यू विल फॉल डाउन। तो ही वुड ऑलवेज डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। वुड मतलब हैबिट, ठीक है। ये हैबिट के लिए यूज होता है कि वो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपनी विट से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो आंसर करता था। ही यूज्ड टू हेल्प एनीवन हु केम टू हिम विद अ प्रॉब्लम। यूज्ड टू मतलब ये उसकी आदत थी कि वो हर किसी को हेल्प करता था जो भी उसके पास हेल्प के लिए आता था। तो the words would and used to are used to illustrate actions which were regularly done in the past. would और used to दोनों जो है past form के लिए यूज करते हैं। used to express a state or habit in the past as contrasted with the present, ठीक है। used to का मतलब होता है पास्ट की हैबिट। वी यूज टू लिव इन दिस हाउस, कि हम यहाँ रहा करते थे। माई मदर यूज टू बेक केक्स, मेरी मदर केक बनाया करती थी, अब नहीं बनाती है। द वर्ड वुड कैन ऑल्सो एक्सप्रेस पास्ट हैबिट बट विद अ सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ठीक है। अब देखो यूज टू और वुड में बहुत एक थिन लाइन है जो आपको समझने की जरूरत है। यूज टू जो है पास्ट की हैबिट्स के लिए है, और जो वुड है वो बेसिकली बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर से रिलेटेड जो होगी वो उसके लिए आप वुड यूज करेंगे। जैसे शी वुड कैरी हर लिटिल डिक्शनरी टू ऑल मीटिंग्स, ठीक है। तो मतलब वो अपनी छोटी सी डिक्शनरी जो है वो हर मीटिंग में लेके जाती थी। When asked a question, I would just clam up as a young boy. और जब भी मतलब मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं क्लैम अप हो जाता हूँ जैसे एक यंग बॉय। तो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड कंप्लीट देम यूजिंग used to and would. For example, my brother dash keep white mice as pets. तो यहाँ पे देखो बिहेवियरल नहीं है, तो यूज टू, माई ब्रदर यूज टू कीप वाइट माइस एज पेट्स, तो यूज टू आ जाएगा। आई डैश नो हर वेल, वी डैश ऑफन मीट एट द कॉफी हाउसेस एंड हैव लॉन्ग डिस्कशंस। तो आई डू नो हर वेल, आई would know her well, we used to often meet, ठीक है, हम मिला करते थे। This dash be a cinema theater way back in 1970s, कि ये सिनेमा थिएटर्स हुआ करता था। This used to. The warden dash sneak upon us during the night, तो यहाँ पे would आ जाएगा, ठीक है। People in this house dash speak a curious, Used to speak as curious. हाँ used to, very good. There dash be a huge tree at this crossing, बताइए। Used to. यूज टू, क्योंकि ट्री है, नॉन लिविंग है, तो आप यूज टू कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, Used to play tricks on people. बट व्हेन समवन ट्राइड एंड स्मैक ट्रिक विद हर शी
she would fly into a rage. अब गुस्सा आता है तो यहाँ पे would use करेंगे, ठीक है. There were no children nearby and the gardener and the delivery boy dash be Rob's only playmates. बताइए. Used to. Used to, ठीक है. So I hope this is clear to you, and I am stopping screen sharing here. If you want to ask on something, you can ask. No, ma'am. Okay, ठीक है. So from my side, I have done block 1, 2, and 3. Still, if you want to ask something, you can ask, or you can post your questions to the study center from where you have got the mail, and I'll answer them. Okay. So shall we end the meeting now?